movements in India. We have few topics that were left out the previous week. So non-cooperative movement, we have seen till that how Congress and Muslim parties joined together to show the Indian unity. And we will see in this video about the constructive aspect, what was the benefit of this movement, and the negative aspects, what were the things that were had a negative impact on the people due to this movement. Then we will see the programs of non-cooperative movement, how the people were for fighting for the freedom had a non-cooperative movement, and what was the programs that were carried and how it can help us to gain freedom and show the non-cooperation against the British government. And then the Chori Chora incident and the withdrawal of the movement, and when this Chori Chora movement came in, and what was the negative aspect that was happening due to which they have to withdraw this movement. We will see about that, and then we will see how this all movements all together helped us to move forward towards our freedom. So these are the topics that we are going to cover one by one from the textbook. Okay, so first we will see about the constructive aspects of non-cooperative movement. So the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened. Means it showed the power of Hindus and Muslims, and it also insisted on Swadeshi articles. Means Swadeshi means as you can see now we have vocal for local. In the same way, Swadeshi articles were given more power. The revival of spinning wheels in every house. Spinning wheels means जो चरखा वो हर घर में मिलने लगा. Collection of 1 crore rupees for the Tilak Swaraj Fund, and 1 crore rupees they were able to collect. And abolish of untouchability, अछूत का जो डिफरेंस था वो स्टॉप कर सके. नेशनल एजुकेशन ला सके. प्रोहिबिशन, यानी ये सब क्या था बेनिफिट्स ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. बट as it is said, coin has two sides, right? So this non cooperative movement had constructive aspects as well as some negative aspects. What were there? They were giving up government jobs. Government school colleges were stopped. They were boycotting what legislatures, the rules that British government has followed, they were stopping. Resigned from the government courts. Government courts, everyone was resigning. The local self-government was enhancing. The boycott foreign clothes. They were also boycotting, मतलब वो फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करते थे, बॉयकॉट कर रहे थे उनके बनी हुई चीज़ों का विरोध, बहिष्कार बोल सकते हो आप. गवर्नमेंट फंक्शंस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था बिकॉज वी वर नॉट ओबेइंग देम. एंड जो टाइटल्स जो इंडियन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की तरफ से मिले थे उसे भी रिटर्न कर रहे थे. सो दिस वर ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. बेसिकली दे वर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग दैट बिलोंग टू ब्रिटिशर्स. ओके, नाउ वी विल सी प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो शुरुआत की इस मूवमेंट की शुरुआत में महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर देयर टाइटल्स, मतलब जो उन्हें टाइटल्स उपलब्धियाँ मिली थी वो उन्होंने रिटर्न की, सरेंडर की. केज़ारे हिंद एंड नाइटहुड ऑनर. एंड जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने भी अपने अपने पोजीशंस और टाइटल्स को गवर्नमेंट को रिटर्न किया. जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल्स को छोड़ दिया. जो फॉरेन क्लोथ्स थे दे वर सेट ऑन फायर्स, मतलब जला दिए. ड्यूक ऑफ कैनाड केम टू इंडिया, ही वॉज बॉयकॉटेड. तो जब ड्यूक ऑफ कैनाड इंडिया पहुँचे तो उन्हें भी बॉयकॉट किया. एंड द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज ऑल्सो बॉयकॉटेड. तो जो नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे
वो डेवलप हो रहे थे, एस्टैब्लिश हुए। काशी, बिहार, जामिया मिलाए, गुजरात विद्यापीठ, ऐसी गवर्नमेंट नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बिल्ड होने लगी। स्वदेशी गुड्स को प्रोपोगेट किया, जो इंडिया में बने हुई गुड्स थी इंपोर्ट होने लगी। क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जरी आइटम्स जो इंग्लैंड से आती थी उन्हें बॉयकॉट किया, तो वो अनेक में कम होने लगी, क्योंकि जब यहाँ पे कोई कंज्यूमर ही नहीं है तो वो चीज़ें आती हुई कम हुई। तो यानी ये सारी रिएक्शंस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर दिया। द गवर्नमेंट शॉक थी कि इतना इकोनॉमिकल लॉस इंडिया ने उनका कर दिया। 1 करोड़ रुपीस तिलक फंड के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। हिंदू मुस्लिम साथ में एकदम क्या बोलते यूनिटी के साथ वर्क करने लगे। मापला रेलॉट बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम बिजनेस डिजर्व क्रिटिसिज्म एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो मापला रिवॉर्ड हुआ मलबार मीन्स साउथ इंडिया में हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम्स के बीच में, हिंदू लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो लैंड ऑनर्स होते हैं वो हिंदू हैं और जो लैंड में वर्क करते हैं बिजनेस वो मुस्लिम, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे स्टॉप करा। वैसे भी वो रॉन्ग था। एंड द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, मतलब दबाकर काम करने का जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट किया। अनकंट्रोल लाठी चार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट, इनह्यूमन टॉर्चर्स वर मेंटेड आउट। मतलब गवर्नमेंट ने जब कुछ भी रास्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिला तो व्हाट दे स्टार्टेड अनकंट्रोल्ड लाठी चार्ज, मतलब लाठी चार्ज करना लोगों पर, फायरिंग, कलेक्टिवली जो उनकी बात नहीं माने उन्हें अरेस्ट करना, टॉर्चर करना। बट क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दे वर नॉट एबल टू stop or break. They were unsuccessful in breaking the Hindu-Muslim unity. Okay, the Chori Chora incident and the withdrawal of the movement. तो चोरी छोरा विलेज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्या किया था, एक रैली निकाली थी। बट पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल, but when they ran shot on bullet, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen were died. तो मतलब जब लोगों ने चोरी छोरा विलेज गोरखपुर में रैली निकाली तो ओपन फायर कर दिया ब्रिटिश पुलिसमैन ने। बट when they ran shot of bullets, people attacked the police station and set it on fire, and in which 21 policemen died. पर जब ये हॉरिबल न्यूज़ गांधी जी को मिली, वॉट ही सेड आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर, मतलब मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मतलब स्टुपिडिटी की, बाय गिविंग द टूल्स ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब मैंने टूल्स किस सत्याग्रह के जो विचार हैं वो किसे दिए, उन लोगों के हाथ में जिनको नॉन वायलेंस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली, और उन्होंने उस मूवमेंट को स्टॉप किया। ओके, जो इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, मतलब जो मूवमेंट क्रिएट हुआ नॉन कॉपरेटिव, इट वॉज नॉट एबल टू अचीव इट्स डिज़ायर्ड एम, जैसा चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिला। बट इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, what it managed to generate a people awareness of their right, means they were aware about what was their right and how they have to gain it. They were able to create the negative atmosphere against the government. They had a strong feeling of opposition against injustice, मतलब जो injustice हो रहा था इंडियन पीपल्स के साथ by the British government, they were ready to oppose it. The political awareness was created between Indians. The faith in independence became stronger. They have lost the fear of failure. They were ready to face anything for gaining freedom. The fear of लाठी, punishment और imprisonment, मतलब जेल में डालना, was removed. They were becoming fearless. Youth and women too come forward to serve their nation, and the Congress came up as an organization for the
people. They were the one who were guiding. School were giving national education. Hindi started getting more importance than English. And the movement had started, not just was limited to one place, one city, but it was spread throughout the India. It was reaching to all people and villages. Okay, now we will see about the Swaraj Party, how to make the national awareness among the people. Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed a party and named it Swaraj Party once the non-cooperation movement was withdrawn, and their purpose was to enter the legislative assembly and to also oppose, मतलब विरोध करना the unfair policies of the government. जो गवर्नमेंट अन्याय कर रही थी उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ. The leaders of the Swaraj Party also adopted the constructive activities of गांधी जी. तो मतलब जो कंस्ट्रक्टिव वेज थे गांधी जी के उन्हें भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया. लाइक अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत का जो डिफरेंस था उसे स्टॉप कराया. हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइवली ऑफ स्पिनिंग व्हील, लिकर प्रोहिबिशन एक्सेट्रा. तो ये जो सारे गांधी जी की एक्टिविटीज़ थी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, यानी हिंदू मुस्लिम को साथ लाना, चरखे का मीन्स खुद हैंडमेड क्लोथ्स, लिकर का प्रोहिबिशन मतलब जो ड्रिंक्स वो सब का प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप करना, इन सब एक्टिविटीज़ को भी स्वराज पार्टी ने अपने साथ ज्वाइन किया था. स्वराज पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव हेल्ड इन नवंबर 1923 और जो कैंडिडेट्स थे स्वराज पार्टी के वो सेंट्रल लेजिस्लेटर में और साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में भी मेजॉरिटी के साथ विन करा उन्होंने. एंड डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी इन बंगाल बट इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी. पर उन्होंने बंगाल में उन्हें मेजॉरिटी वोट नहीं मिले बट वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरह इमर्ज होना मतलब उभर कर आए. मोतीलाल नेहरू was elected into the central legislative as a party leader and Chittaranjan Das was elected as the Bengal provision. And this Swaraj Party disapproved the government budgets and proposals and resisted the injustice policy of the government. मतलब जो स्वराज पार्टी थी वो जो भी गवर्नमेंट के अनजस्ट रूल्स थे, पॉलिसीज थे, उन्हें डिसएग्री करती थी. एंड इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल. और उन्होंने गवर्नमेंट को कंपेल किया मतलब मजबूर किया ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसे समझे. Due to the working of Swaraj Party only, government had to appoint the Simon Commission 2 years early. इस स्वराज पार्टी की वजह से ही साइमन कमीशन 2 साल पहले इमर्ज हुआ. And the Swaraj Party's function were disciplined manner and they also had high parliamentary parties. It proved to the British government that Indians can rule constitutionally and डेमोक्रेटिकली. मतलब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रूव किया कि इंडिया भी अच्छे वे में एक अच्छे रूलर की तरह इमर्ज हो सकती है. एंड द एजुकेशन क्लास ऑफ इंडिया वॉज दस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्वराज पार्टी. नेशनल अवेयरनेस जनरेट हुई लोगों के बीच एंड द पार्टी प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर. मतलब स्वराज पार्टी की जो वर्किंग थी, जो मूवमेंट्स थे, वो हमें और पास ले गए इंडिपेंडेंस की ओर. एंड ऑल दिस इंसिडेंट इंडिकेट्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी. एंड बट विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास द स्वराज पार्टी बिकेम वीक. Some members became supporting the government while others established a new party named the National Party. पर जब चित्तरंजन दास की डेथ हुई तो व्हाट हैपेंड, द स्वराज पार्टी बिकेम वीक. द गवर्नमेंट, सम मेंबर्स ऑफ द पार्टी स्टार्टेड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट and a few started generating new parties and even named